Now next we take calculation of n factor values for oxidizing or reducing agents. For oxidizing and reducing agents. Okay. Oxidizing agents and reducing agents. Reducing agents. For calculation of n factor value for oxidizing or reducing agents, you should be very clear in the definitions or these terms. What are oxidizing agents? We discussed in redox reactions. क्या थे? Oxidizing agents, the substances which help in oxidation of other substances but get reduced themselves. Means the reaction is substance which will be reduced or which gain electron will be acting as oxidizing agent. The substance which help in oxidation of other substances. How? Because they can gain electron from other substances. So in the reaction they gain electrons. And what are reducing agents? By definition क्या होता है ये? The substances which help in reduction. The substances which help in reduction of other substances but get oxidized themselves. They help in reduction of other substances but get oxidized themselves. Means in the reaction they lose electrons. था ना definition में? They help in reduction कैसे? By losing electrons. They lose electron, so this electron loss will help in other compound reduction. Will help in the reduction of other substances. So in the reaction, अब सिंपल अगर क्वेश्चन में दिया है तब ऐसे लिखेंगे. जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट. ये सिंपल तरीका है पहचानने के लिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए. तो इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे एन फैक्टर वैल्यू? यहाँ पर एन फैक्टर कितना होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gained by 1 mole of substance. 1 mole of substance or reagent. क्या लिखा है? Number of moles of electrons lost or gained by 1 mole of substance. इलेक्ट्रॉन में भी lost और gained किस में होता है? Lost in reducing agent, gain in the oxidizing agents. For how many moles? For 1 mole of substance. They are the key points. Electrons lost or gained for 1 mole of the substance. If 1 mole of substance can lose electrons, so how many? Can gain electrons, so how many? When it is losing electrons, it is acting as reducing agents. When they gain electrons, they are acting as oxidizing agents. समझ आया? चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली टू बैलेंस redox reactions, shortcut methods, other approaches. It is very helpful technique. So we will first explain some examples and then we will take practice. So let us take some examples first. जैसे आपको दिया है, इसमें कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपको वो रिएक्शंस याद भी होने चाहिए. स्पेशली पर बोलता रहूंगा. इसे एक आपका रिएक्शन है, reaction of potassium permanganate KMnO4. It is very important compound KMnO4. It can be used in 2-3 type of reactions as oxidizing agent. Obviously when this compound taken in acidic medium, it convert to manganese plus 2 state. When we use this compound in acidic medium, it convert to manganese plus 2 state. Can you find the N factor value here? Okay, so for KMnO4, what should be the N factor value? We will discuss. This compound we can use in 3 reactions. One is KMnO4 in acidic medium. Then we take KMnO4 in neutral or dilute basic medium. Dilute alkaline medium. Or we use KMnO4
in strongly alkaline medium. Strongly alkaline medium. If you take when you take this compound in neutral or dilute basic medium, it convert to MnO2. In strong basic medium, it convert to K2MnO4. It is a green colored substance. Solution is green, and for solution KMnO4, what is the color? This solution is purple color. KMnO4 solution is green. KMnO4 is purple. That compound is green. It is brown. Black mixture is obtained. Solution is colorless. Use compound it is colored, decolorize. So the solution is colorless of manganese +2 state. Can you find the refractory value for the given compound in all the reactions? It is very important example. KMnO4 used frequently, and mostly when they ask questions in redox titrations, calculation of equivalent weight of reducing or oxidizing agents. In them, this compound is very much probability. This compound is very much probable. Okay. So let us find refractory value. हम कैसे निकालते हैं refractory value? Electron loss or gain. How to find? From oxidation number. For KMnO4 in KMnO4 for manganese, what is oxidation number? +7. It is +7 in all the compounds. Same compound है. Now manganese will convert from +7 to +2 states. Will gain how many electrons? +7 to +2 will gain 5 electrons. So what should be the refractory value? 5. In second reaction, it convert to MnO2 where we have manganese dioxide. In MnO2 for manganese, oxidation number is how much? +4. So +7 to +4 will gain 3 electrons. +7 to +4 will gain 3 electrons. So refractor is 3. Last compound, it is +6 oxidation number of manganese. +7 to +6 will gain 1 electron. +7 to +6 oxidation number. Here manganese will gain 1 electron. So refractor is 1 for KMnO4. Okay, are you clear? चलिए let us take some practice on these examples, these questions. आपके next example दिया इसमें compound is potassium dichromate K2Cr2O7 giving chromium +3 ions. This solution have green color. For chromium +3 ions, potassium dichromate have orange color. Right now we are not focusing on color. Let us get into the example. In this reaction for potassium dichromate, can you find the refractory value? It is again very important. Oxidizing agent potassium dichromate. The questions related in examinations are commonly given regarding oxidizing agents for either potassium dichromate or potassium permanganate. Okay. So can you find for this compound refractory value? निकालिए कितना आ रहा है इसमें? 3. Yes? No. आपको लगेगा 3 आएगा, आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है? लाइक क्रोमियम है, ऑक्सीडेशन नंबर +6, here it is +3. तो आपके सर यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ +3 हुआ, तो इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए यहाँ पे, बट इसका आंसर 3 नहीं है. इसका आंसर 3 नहीं है. क्यों नहीं है? देखिए इसके एक मोल में कितने एटम है क्रोमियम का? 2 एटम्स. इसके एक मोल में 2 एटम है क्रोमियम का. 1 मोल है 2 एटम क्रोमियम. तो 1 एटम क्रोमियम विल गेन 3 electrons. How we define refractory value? Number of moles of electrons lost or gained by 1 mole of compound. In 1 mole of compound we have 2 atom chromium. For 2 atom chromium they will gain how many electrons? 6. देखो ना, per atom gain 3 electrons. 1 atom gain 3 electrons. And 2 atom will gain 3 plus 3 6 electron gain. So when you take 1 mole of potassium dichromate, convert to chromium +3 oxidation number, it will gain 6 electrons. So इसका refractor कितना होगा उसमें? 6.
Let's see some more examples. Chlorine gives Cl minus, chlorine gives ClO3 minus, ClO3 minus give Cl minus, nitrate ion give ammonium plus 4. You get in the exam question like in this reaction for nitrate ion what is equivalent weight? तो कितना आएगा? इट इज मोलर वेट बाय n फैक्टर वैल्यू. व्हाट इज मोलर वेट? 62. आपको n निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना. जैसे मोलर वेट 62. तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल्स. इन दिस एग्जांपल्स टू मेक दिस पॉइंट मोर क्लियर आप और देख सकते हैं यहाँ पे. लाइक फॉर क्लोरीन, फर्स्ट एग्जांपल इज क्लोरीन. फॉर क्लोरीन इन द रिएक्शन व्हाट शुड बी n फैक्टर वैल्यू? Cl2 के लिए यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्लोरीन का, यहाँ पे -1 है, मीनिंग 1 एटम क्लोरीन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. इन 1 मोल में 2 एटम क्लोरीन, सो 2 एटम क्लोरीन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. 1 एटम क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ -1 है, तो 1 एटम विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. समझ आया? Now next example taken Cl2. यहाँ पे कितना क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ कितना है +5. क्लोरीन यहाँ 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कितना है +5. तो 0 से जाएंगे +5 कितने एटम के लिए? एक एटम के लिए. 1 एटम ऑफ क्लोरीन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे क्या दिया है? एक मोल में 2 एटम है क्रोमियम के. फॉर 2 एटम क्रोमियम दे विल लूज 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका आंसर 10 होगा. 0 to +5 लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन पर एटम. एक मोल में 2 एटम है, एक एटम में लॉस हुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स का. फॉर 2 एटम दे विल लूज 10 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट आएगा इसमें, यहाँ पे क्लोरीन है +5, यहाँ पे क्लोरीन है -1. +5 से -1 क्या हो रहा है इसमें? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एक मोल में एक ही एटम है, यहाँ पे एक मोल में एक एटम है, तो यहां पर कितना इसका इफेक्ट आना चाहिए? 1 एटम विल गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? पहले +5 से 0 जाएगा, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, देन टू -1 विल गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन. सो टोटल दे विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट में कितना इफेक्ट आना चाहिए? यहाँ पे इनका n का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है. ओके, सो कितना इसका इफेक्ट रहेगा यहाँ पे? +5 to -3, पहले 0 then to -3 will gain 8 electrons. +5 to -3 will gain 8 electrons. So if they ask question for equivalent weight कितना आएगा? By 8 कितना आएगा? solving 7.75. This question was asked once in IIT JEE question paper कि in the given reaction of nitrate ion convert to ammonium ion, find the equivalent weight. Find the equivalent weight of nitrate ion. तो कितना आएगा? मोलर वेट बाई इट्स n फैक्टर वैल्यू. कितना का इफेक्ट यहाँ पर है? 8 है, एंड आंसर ऑन सॉल्विंग विल कम 7.75. आर यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे कुछ अब लेट अस टेक सम प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ. यू ट्राई दिस एग्जांपल, आई विल राइट इन द क्वेश्चन. फाइंडिंग n फैक्टर वैल्यू आपको दिया पहला ऑक्सिलेट आयन गिविंग CO2 गैस. फाइंड n फैक्टर वैल्यू. Cl negative ion, if they give ClO4 minus, find the factor value. Nitrite ion, give nitrate ion, find the factor value. H2S convert to sulfuric acid, Na2S2O3 giving Na2S4O6. You try these examples yourself. You try these questions yourself. Okay. Now let's go on solution part. In solution part, I hope you have tried the question thoroughly. In solution part, first we take for carbon.
what is oxidation number? +3. Here it is +4. One atom carbon lose 1 electron in 1 mole of reactant. Where 2 atom carbon, तो 2 atom lose 2 electrons. आपको देखना है उसी कंपाउंड को जिसका आपको इन्फेक्टर निकालना है. फिर यहाँ पर है इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है? +7, लूज 8 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे स्टेट +3 है, यहाँ पे स्टेट +5 है, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ -2 से यहाँ +6 जा रहा है, लूजिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कितना है? +2, यहाँ पे कितना है? +2.5. See, one point should be clear that whenever a compound can have 2 or more elements in different oxidation number, we take their average oxidation number. Already we have given the example to you in Na2S4O6. All sulfur atoms are not identical. Moreover, sulfur atom have fractional oxidation number. Sulfur atom में क्या है? Fractional oxidation number. तो real तो होगा नहीं. We told कि fractional are not real, they are average. Average oxidation number. तो अगर कभी क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि एलिमेंट्स का आपको रियल पता है कि डिफरेंट है, बट आपको वो नहीं देखना है, आप क्या देखते हैं? केवल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. आप क्या देखते हैं इसमें? केवल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. कितना है इसका? +2.5. एंड अप्लाई यूनिटरी मेथड ओनली. अब इसमें कितना है? +2, यहाँ पे है +2.5. अब इसके एक मोल में इफ यू टेक 1 atom sulfur lose, 1 atom is 1 mole of sulfur atom lose half mole of electrons. Then 1 mole are 2 atoms of sulfur, 1 mole are 2 moles of sulfur atoms. Then 2 moles of sulfur atom lose how many mole of electrons? 1 mole of electrons. If 1 atom, if it is simplest approach, कि 1 atom lose half electron, then 2 atom lose 1. That's all. Actually, electron half नहीं होता है. Electron they are moles term actually. And moreover, ऑक्सीडेशन नंबर we are finding is average, not actual. क्योंकि हमें क्या निकालना है? 1 मोल कंपाउंड के लिए, उसमें हमारा इंटरेस्ट है. इसमें हमारा इंटरेस्ट सेपरेट एटम में नहीं होता है. समझ में आया ना एग्जांपल वाला? ओके, लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस. Ferrous oxalate giving ferric ions plus CO2. Second example given is ferrous nitrite convert to ferric nitrite. Third example given is Cu2S convert to Cu plus 2 ions plus sulfur dioxide. Can you find for these 3 compounds n factor values? Think slightly higher, think more, and try these examples yourself. Think more and try these examples yourself. Okay, try. चलिए, let us see the solution part. In solution part, if you take oxidation number, this compound is ferrous oxalate. Ferrous means iron is in +2 state. In oxalate, carbon is in +3 state. Iron +3, carbon is +4. So in this case, you can see we have 2 atoms which undergo change in oxidation number. Iron convert to ferric state from ferrous, and carbon convert from +3 to +4 state. इसके कंपाउंड में हमारे 2 एटम्स हैं, आयरन एंड कार्बन. 2 एटम्स आर ऑक्सीडाइज. आयरन भी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है इस केस में. अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड. तो इसमें हम चेक करते हैं. अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए. सिंपल तरीका है. 1 एटम ऑफ आयरन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो फ्रॉम आयरन पार्ट लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, and per atom carbon lose 1 electron, 2 atom carbon lose 2 electrons. So when we add together, from iron loss of 1 electron, from 2 carbon atom losing 2 electrons, so total loss of 3 electrons.
and that become effector value. समझ में आया नहीं आया? जिसको नहीं आया एक बार और देखेंगे यहाँ पे। अगर आपको डाउट होता है कि कैसे हो गया, आप इक्वेशन को ब्रेक कर लो दो पार्ट में। इसमें एक दिया है आयरन +2, it convert to iron +3, losing 1 electron, and other part is auxiliary ion, they will give CO2, 2 CO2 and losing 2 electrons. हमने इसको दो फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में। एक है आयरन +2 में था, +3 चला गया, +2 से +3 चला गया, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे है ऑक्सीडेट, यहां पर कार्बन का कितना दिया ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां कितना है +4 है, मीनिंग 1 एटम कार्बन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2 एटम कार्बन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? आप ऐड कर लीजिए, ऑन एडिंग number become how much? 3. That is how you can say in this case, in ferrous oxalate 1 mole of compound is losing 3 moles of electrons, so it will have n factor value 3. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपका आता है एंट्रेंस में, जेई मेंस, एडवांस और एम्स, नीट, सब में क्वेश्चन ये पूछते हैं एग्जांपल्स हैं कि इसका रिलेशन कैसे करेंगे इक्विवेलेंट बिट निकालने के लिए या और भी पॉइंट्स के लिए। एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू। ओके, कैन यू फाइंड नेक्स्ट वन? देखिए नेक्स्ट में कितना आंसर आएगा आप देख लीजिए। यहां भी सेम आपकी कहानी है पहले वाली, यहां भी दिया है आयरन +2 स्टेट में है, फ्रॉम आयरन पार्ट दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे दिया है नाइट्राइट आयन, नाइट्रोजन इज +3, यहां पे n कितना है +5। आयरन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 1 एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन लॉस। सो इसका कितना इफेक्ट रहेगा 5। समझ में आया कि नहीं आया? अगर देखिए डाउट होता ब्रेक कर लो, इसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग को, है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको ब्रेक करो दो पार्ट में। इसमें क्या क्या दिया है आयंस में? इसमें एक दिया है आयरन और दो दिए हैं नाइट्राइट आयन। आयरन कन्वर्टिंग टू आयरन +3, नाइट्राइट आयन कन्वर्ट टू नाइट्रेट आयंस। एक मोल में दो मोल्स हैं तो राइट 2 मोल्स में कितना चेंज होगा? आयरन लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 1 +2 to +3 state, whereas in nitrite ion nitrogen have oxidation number how much +3, तो 1 एटम नाइट्रोजन यहां कितना स्टेट है इसका +5, तो 1 एटम नाइट्रोजन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, then 2 एटम नाइट्रोजन लूज 1 एटम लूज 2, then 2 एटम लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल लॉस is there of 5 electrons for 1 mole of compound. That 1 mole of ferrous nitride lose 5 mole of electrons and they convert to ferric ions plus nitrate ions. समझ में? चलिए पर नेक्स्ट एग्जांपल आएगा Cu2s will give Cu +2 ions plus sulfur dioxide। इसमें कितना इफेक्ट रहेगा निकाला आपने? देखिए इसमें भी आपका वही कहानी है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहां इसका +1 है, यहां पे कॉपर का स्टेट +2 है और यहां पे कितना सल्फर का स्टेट +4 है। इसमें भी क्या है 2 एटम का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो क्या करेंगे इसका इफेक्ट निकालने के लिए? इसको आप देख लेंगे, यू कैन ब्रेक, अदरवाइज यू कैन चेक डायरेक्टली। पर एटम कॉपर लूज 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर 2 एटम कॉपर लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 एटम कॉपर मींस कॉपर 1 है, Cu +2 स्टेट में है, तो 2 कॉपर है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस। सल्फर -2 है, यहाँ पे कितना सल्फर है +4 है, तो कितना एक ही मोल में एक एटम है, एक मोल कंपाउंड में 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल थे तो 2 मोल लिखा। सल्फर -2 to +4 will lose how many electrons? 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले क्या होगा 0 losing to +4 electron more, so total electron loss will be how much? 8. So in this reaction for Cu2s what should be effector value? 8.
आई होप इट्स क्लियर। देखिए FeCN6 4 minus give ferric ions plus carbonate ion plus nitrate ion. In this case, for this compound, can we find the effector value? One example. One more example you can write here. One example, another example, AS2S3 will convert to ASO4 3 minus and sulfate ions. For these compounds, can you find the effector values? You try these questions yourself first. Okay? On solution part. When we come on solution part, अब देखिए इसमें first for all the atoms we find oxidation number. Already explained to you we find oxidation number. How to find oxidation number? हमारा पहला टारगेट क्या था? आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसमें? +2 स्टेट में है। यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में। इन Cn नेगेटिव आयन फॉर कार्बन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? I told you already कि इसमें हम कार्बन, इनका क्या हुआ? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इन द एग्जांपल Cn नेगेटिव आयन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट इज -3। फॉर कार्बन we take X equal to how much? -1. What is X taken here? -1 and plus -3 over +3 means +2 state. So in this compound taken Cn negative ion, carbon have oxidation number +2, nitrogen have oxidation number -3. In this product iron भी +3 में है, carbon have oxidation number +4 and nitrogen have oxidation number +5. In this example, more than one atom, in fact 3 atoms, iron, carbon, nitrogen, all 3 atoms are oxidized. In this case, all 3 atoms are oxidized, iron, carbon, nitrogen, तीनों का ऑक्सीडेशन हुआ इस केस में। तो आपको क्या निकालना है? इफेक्टर। तो we find total change for 1 mole of compound. अब इसमें काउंट कर लेते हैं। For iron, what is loss of electrons? देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, आयरन आपका एक ही था, लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फॉर आयरन पार्ट? 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितना है आपका? अगर आप देखते हैं 1 मोल में, अगर तो Cn को ब्रेक करते हैं सेपरेटली 1 मोल में, क्या देगा? कार्बोनेट आयन प्लस नाइट्रेट आयंस। इसको ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में। तो इन Cn नेगेटिव आयन, कार्बन इज +2, कार्बन इज +4। 1 atom carbon lose 2 electrons and nitrogen is -3, it is +5. 1 atom nitrogen lose -3 to +5, -3 to +5 will lose 8 electrons. -3 to +5 will lose 8 electrons. That means in the reaction taken here, from 1 mole of Cn negative ion, 1 mole of Cn negative ion, they are losing how many electrons? 10 electrons. 1 mole of cyanide ion lose 10 moles of electrons. So 10 mole means for 1 mole of Cn losing 10 mole of electrons, and 6 moles of Cn will lose 60 electrons. 1 mole lose 10, for 6 mole into 6 कर देंगे कितना होगा? 60. From here 60 electron loss. Sorry, iron 1, here 60, so 61 electron will be lost. So in this case, for this compound, n factor become 61. बढ़ाएगा, आने दीजिए, आप डरिए मत, ये सब बहुत बड़ा हो गया, इतना कैसे आता है? आने दीजिए। अगर रिएक्शन ऐसा दिया है तो उसमें n factor आपका 61 आएगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। In next example taken, sulfur is -2, sulfide है, then what is arsenic? +3. Here arsenic is +5, sulfur is +6. So you can take 2 atom arsenic lose, 1 atom lose 2 electron, 2 atom lose 4 electrons. From arsenic part they lose 4 electrons. Sulfur part they lose how many electrons? -2.
इसमें ना किसी लिखा हमने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। देखिए 1 एटम सल्फर सॉरी आर्सेनिक 1 एटम आर्सेनिक लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम्स आर्सेनिक तो 2 कर देंगे इसमें, 1 एटम सल्फर लूज 8 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर 3 एटम तो इंटू 3 और 24 प्लस 4 28 and factor for AS2S3 in the reaction become 28। अब आते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या है फैक्टर का, कि हमने इतने एग्जांपल कर दिया आपको है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, पहले आपका था मेन एप्लीकेशन हुआ था कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कि कोई भी रिएक्शन दिया है पूछा है इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, आप निकाल सकते हैं कैसे, मोलर वेट बाई एन फैक्टर से, मोलर वेट बाई एन फैक्टर से। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, लेट अस राइट इन क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट required to oxidize 1 mole of, आपको पार्ट्स दिए क्वेश्चन में, पहला पार्ट दिया है निकालना क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट। सेकेंड बिट दिया है सोडियम सल्फाइड, थर्ड बिट आपको दिया है फेरस ऑक्सलेट, फोर्थ बिट आपको दिया है CuS, बिट 5 आपको दिया है Cu2S, बिट 6 आपको दिया है फेरस नाइट्राइट। Yeah, if you can get more compounds, all reactions given in acidic medium, all the reactions given in acidic medium। इसमें क्या होता है, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। आपको मैं चलो पहले स्टार्टिंग है, आपको मैं रिएक्शन देता हूं। इसमें किसका प्रोडक्ट क्या है, फेरिक आयंस एंड सल्फेट आयंस। सल्फेट में चेंज कुछ नहीं होगा, इसमें दिया है सोडियम सल्फाइड, सोडियम आयंस अनचेंज, सल्फेट आयन फॉर्मेशन, यहां पे देगा फेरिक आयंस प्लस CO2, यहां पे देगा Cu+2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे मिलेगा Cu+2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे देगा फेरिक आयंस प्लस नाइट्रेट आयंस। ये आपका एग्जांपल IIT JEE में स्पेशली एम्स क्वेश्चंस, इवन JEE मेन और नीट, दे आस्क क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ऑन these points। Here equations may not be given to you, प्रोडक्ट आपको खाली देगा रिएक्टेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट ना मिले, तो आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सोच लीजिए, यू कैन गेट इजीली। कंपाउंड सारे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रोल क्या है, ऑक्सीडेशन करेगा कंपाउंड्स का, ठीक है ना। यू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ, यू ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। And then we'll explain. Okay, let's come on solution part. I can write the answer this side here. You can write answer that side. देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें आपको मैं हिंट देता हूं उसमें, या पहला पार्ट देखते हैं सॉल्व करने से पहले। पहला एग्जांपल दिया है फेरस सल्फेट, इसका हमने रिएक्शन किया किससे, KMnO4 से। कहां पे रिएक्शन लिखा है, एसिडिक मीडियम में, तो क्या देगा आपको प्रोडक्ट यहां पे, फेरस आयन बिकम फेरिक आयंस, मैंगनीज बिकम मैंगनीज +2, सल्फेट आयन कोई चेंज होगा नहीं, तो लीव द सल्फेट आयंस, जिसमें चेंज नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए सल्फेट आयंस को। तो इन दिस रिएक्शन कैन यू फाइंड इन्फेक्टर वैल्यू ऑफ ईच कंपाउंड। वी टोल्ड कि व्हेन वी टेक KMnO4 और एनी कंपाउंड ऑफ मैंगनीज,
KMnO4 or any compound of manganese in acidic medium, they convert to manganese +2 state. So in this case, when it is KMnO4 +7 to +2 state will gain 5 electrons. तो इसका फैक्टर 5 फिक्स हो गया है सारी रिएक्शंस में। और लिखा ना एसिडिक मीडियम, इसलिए कि एसिडिक मीडियम फॉर KMnO4 एन फैक्टर वैल्यू फिक्स है, कितना होता है 5। फॉर फेरस सल्फेट इन द रिएक्शन व्हाट इज एन फैक्टर वैल्यू? सल्फेट में चेंज कुछ नहीं होता है, आयरन का स्टेट था +2 to +3 स्टेट, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पहला स्टेप होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आपको मिलते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, आप रिएक्शन लिख लीजिए। पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है आपको पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है। आप क्या करेंगे, राइट द रिएक्टेंट्स एंड राइट द प्रोडक्ट ओनली। जिसमें चेंज नहीं होगा उसकी आयन में उसको छोड़ दीजिए, जिस भी आयन में चेंज है उसको छोड़ दीजिए। तो कितना होगा इसमें, फेरस आयन, फेरिक आयन, सल्फेट कोई चेंज होना नहीं है तो लीव सल्फेट आयन। मैंगनीज था +7 से +2 चला गया, गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इनवर्स। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर एन फैक्टर्स। तो कितना है रेशियो एन फैक्टर का, 1:5। व्हाट द रेशियो मोल्स, 5:1। 1 मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखें रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर के लिए 5 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट नीड हाउ मच KMnO4, 1 मोल। देन 1 मोल रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स, कितना आंसर होगा 1/5। दैट इज आंसर फॉर दिस कंपाउंड। The N factor value is how much here? 1. So what the answer? 1/5. आप चेक कर लीजिए आराम से। Ratio of moles and the N factor will be inverse because तभी आपका redox reaction बैलेंस हो पाता है कि इसका 1 मोल में कितना गेन है 5 इलेक्ट्रॉन का, तो 5 मोल चाहिए यहाँ पे, they can lose 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका बैलेंस हुआ रिएक्टेंट के लिए। तो that's the shortcut of balancing redox reaction by this example. ओके अब नेक्स्ट कितना फैक्टर आएगा इसके लिए, अब बैठ सकते हैं एग्जांपल को है। सल्फर का स्टेट है +4, सोडियम में चेंज नहीं होना है, सोडियम में कोई चेंज नहीं होता है। सल्फर का स्टेट है +4, सल्फर यहाँ पे कितना है +6, +4 से +6 जाएगा सल्फर, +4 से +6। सल्फर लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका फिक्स है, तो आंसर कितना आएगा आपका 2/5। सेम तरीके से इफ आई राइट सोडियम सल्फाइड तो इसका फैक्टर 2 आएगा, तो 2 यहां पे 5 यहां पे, 5 मोल्स इक्वल 2 मोल्स, देन 1 मोल रिक्वायर 2/5 moles become your answer. Next example, take a ferrous oxalate we have done right now. It have how much N factor value 3. It have how much N factor value 3. So इसमें कितना N factor आना चाहिए आपका आंसर मोल्स के लिए 3/5. 3/5. कैसे आप करेंगे? देखिए, if I write the example taken, for FeC2O4, you discuss example right now with KMnO4, acidic medium क्या देगा? Ferric ions plus CO2 plus मैंगनीज +2, तो कितना इसमें N फैक्टर हुआ इसका 3। आयरन से लॉस हुआ आपका 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 एटम से लॉस हुआ कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन का, टोटल लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे कितना इसका फैक्टर आएगा 5। ये फिक्स है, एसिडिक मीडियम KMnO4 N फैक्टर फिक्स है, तो 5 मोल्स रिक्वायर 3 मोल्स of KMnO. This compound require how many moles?
3 moles of KMnO4, then 1 mole require 3/5 moles. So answer is 3/5 moles. बैलेंस किया इसको हमने इनडायरेक्टली फॉर रिएक्टेंट्स ओनली, बिकॉज में रिएक्टेंट में खाली इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं आते हैं। वो खाली इसलिए था कि इन्फेक्टर बनाएगा उसके लिए, कि हमारा इंटरेस्ट प्रोडक्ट में इतना था केवल इन्फेक्टर निकालने तक। फिर हमें देखना है इसी का रिएक्शन में कितने मोल रिक्वायर्ड है, एक रिएक्टेंट के मोल्स के लिए अगले के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, समझ रहे हैं। फॉर Cu2S कितना का इन्फेक्टर आएगा इस रिएक्शन में, कॉपर में चेंज कुछ भी नहीं है, +2+2, सल्फर इज -2 to +4, sulfur is -2 to +4 means 6 electron loss. So what should the answer here? 6/5. In next case कितना इफेक्ट रहेगा इसके लिए, +1 से +2 2 atom, copper lose 2 electron, sulfur 1 atom will lose 4 electrons, 6 electrons, तो इफेक्टर 8 आएगा। आप देख सकते हैं, अगर डाउट है तो फॉर Cu2S Cu+2 जाएगा इसमें, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, हियर सल्फर इज -2, हियर कॉपर इज +1, सल्फर विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर इज चेंजिंग फ्रॉम -2 to +4, लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर का दिया है +1 से +2, एक एटम के लिए, फॉर 2 atoms they lose 2 electrons, so total loss 8 electrons, so compound have how much effector value, 8. when effector value is 8, कितना हमारा आंसर आएगा, 8/5. and for last compound कितना effector हमारे पास है, 5. you discuss right now. आयरन का चेंज हुआ +1 से +2 स्टेट में, आयरन का चेंज हुआ +2 से +3 स्टेट में, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्राइट में दिया है नाइट्रोजन +3 से +5 में, एक एटम नाइट्रोजन में लॉस हो रहा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 एटम में लॉस होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स का, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। आयरन पे लॉस 1 इलेक्ट्रॉन का, फॉर आयरन लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर 2 नाइट्रोजन लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन टोटल लॉस 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द आंसर, 5/5. Your answer is 5/5. So it's one common simple approach, simplified approach in solving such questions. ये एग्जाम्पल्स आपको मैं लिखे यहाँ पे, they are very important. अगर एग्जाम में जैसे आपका ये क्वेश्चन था, नीट था क्वेश्चन 2016 में, ये आपका रिएक्शन दी थी उन्होंने, ओनली रिएक्टेंट वर गिवन बट नॉट प्रोडक्ट। तो आप बेटर है कि कुछ कॉमन रिएक्शंस को ध्यान रख लीजिए, और ये एग्जांपल ऐसे हैं, इनमें क्वेश्चन आपका बार बार आता है, द क्वेश्चन कम रिपीटेडली ऑन दिस टॉपिक फॉर फाइंडिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चे क्या सोचते रहते हैं कि सर कैसे करें, रिएक्शन पता नहीं है, नो नीड टू टेक टेंशन, यू राइट द रिएक्टेंट ओनली एंड जस्ट प्रोडक्ट्स कि क्या बनेंगे। अगर दिया है तो पता, अच्छी बात है कि आप लिखेंगे उसको। इसमें एक पॉइंट आपने क्या देखा, बहुत सिंपल है कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम है, इन्फेक्टर वैल्यू फिक्स है, इसका इन्फेक्टर वैल्यू फिक्स है, आप उसको लेंगे यहाँ पे। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. find the number of moles of potassium dichromate K2Cr2O7 required to oxidize 1 mole of again all the same bits in acidic medium. अब यहां पर क्या करेंगे आप क्वेश्चन करने के लिए, लाइक द प्रीवियस केस, इसमें कितना इन्फेक्टर रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, वी हैव डिस्कस
when we take potassium dichromate will act as oxidizing agent. In acidic medium it convert to chromium plus 3 state. It will have how much N-factor value? 6. It have how much N-factor value? 6. So what are our answers? इसका N-factor कितना हुआ? 6 हो गया. Ratio of moles and N-factor will be reciprocal. Using that point, your answer will come 1/6, 2/6, 3/6, 6/6, 8/6, 5/6. Become your answer. I hope it is clear. If I take first example, let's say potassium means reaction taken of ferrous sulfate with potassium dichromate. इसका फैक्टर 6 था, इसका फैक्टर का 1 था, हमने निकाला था. And 6 moles require 1 mole, then 1 mole require 1/6 moles. हो गया आंसर. ओके, तो all 2/6, 3/6, 6/6, 8/6, 5/6. You can simplify that. In this writing direct trick कैसे आप यूज कर सकते हैं. अगला एग्जांपल क्या लेंगे? Suppose if I replace this compound potassium dichromate by barium permanganate. Barium permanganate. In acidic medium, for barium permanganate, what should be the N-factor value? It give manganese plus 2 state. So for this compound, what should be the N-factor value? Mn plus 7 से plus 2 जाएगा. 1 atom manganese will gain 5 electrons. Now 2 atom manganese will gain 10 electrons. So for this compound, your N-factor become how much? 10. So what should be your answers? Replace the atom 6/10. 1/10, 2/10, 3/10, 6/10, 8/10 and 5/10. आई होप आपस में हमारा एग्जाम्पल सारे होने वाले. बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं. बच्चे खाली डरते हैं कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे. कुछ नहीं डरना आपको है. दे आर वेरी सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स टू फाइंड द N-factor वैल्यू इन सच केसेस. और इसका ये पहला एप्लीकेशन हुआ N-factor वैल्यूज के लिए कि मोल्स निकालने के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट वी टेक द एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ N-factor वैल्यूज in the disproportionation reactions. We take N-factor calculation for disproportionation. You discuss this reactions of disproportionation where? In your redox reactions. What is meaning of disproportionation? The redox reaction where a same substance is oxidized and reduced simultaneously. The reaction is disproportionation when same substance get oxidized and reduced simultaneously. So in this reactions of disproportionation, like example taken chlorine. Chlorine convert in basic medium to give Cl negative ion, ClO3 negative ion and water. One reaction is given to you. In the reaction of disproportionation of chlorine in hot alkaline medium, it convert to Cl negative and ClO3 minus. अगर लेते हैं cold NaOH तो क्या बनता है? OCl minus. फिलहाल आप उसका टेंशन मत लीजिए. यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया होगा. अगर पूछा है इक्विवेलेंट निकालना है तो, अदरवाइज ये आप रिएक्शन पढ़ोगे इन चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन क्लास 12 हैलोजेंस रिएक्शंस. तो यहाँ पर कितना इसका N-factor आपको निकालना है. इसमें हमारे दो तरीके हैं. इसके N-factor निकालने के लिए दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं. क्या क्या आपका मेथड्स है? आपका है फर्स्ट मेथड यहाँ पे मेथड नंबर 1. For the reaction of disproportionation, we find the compound's equivalent weight is equal to equivalent weight in oxidation reaction plus equivalent weight in reduction reaction. अब ऐड कर लीजिए. Find equivalent weight in oxidation reaction plus equivalent weight in reduction reaction. So for chlorine, let us find N-factor value in oxidation and reduction reaction.
व्हेन क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज क्या देगा आपको यहाँ पे ClO3 minus. Then for this reaction for oxidation for chlorine, what is the factor value? 10. And when Cl2 reduce, then it have how much factor value? 2. So in this case, from this point, what is equivalent weight of chlorine? M by 10 in oxidation plus M by 2. That on solving come how much? We take LCM 10. तो कितना सॉल्व करना है इसका वैल्यू 6m by 10 or 3m by 5. When you equate this equivalent weight, what is equivalent weight? Molar weight by n factor value is equal to 3m by n factor value means this 5. For the compound, what is equivalent weight? Molar weight by n factor. यहाँ से कितना आएगा molar weight by n factor ही आएगा, दोनों same होना चाहिए. When you equate two expressions, how much is n factor value coming here? 5 by 3. n factor can be fractional. n factor can be fractional as well. तो ये हमारा एक तरीका हुआ, अप्रोच हुआ कि equivalent weight कितना हुआ molar in oxidation reaction, molar weight by 10. Because in oxidation of chlorine, it will have n factor value 10 plus equivalent weight in reduction reaction, molar weight by 2. Molar weight by 2. When we add both values, it comes how much? 6m by 10 or 3m by 5. Equate कर लीजिए. What is equivalent weight? Molar weight by n factor. तो n आपका same होगा, m cancel out, तो n will be how much? 5 by 3. It is method number 1. Second approach can be taken, balancing of redox reaction. How to balance this redox reaction? देखिए, अगर आपको दिया है disproportionation reaction, इसको बैलेंस करने के लिए हम आपको एक अप्रोच और बताएंगे. क्या? अप्रोच ऑफ n factor values. एक हम काम क्या करेंगे इसमें कि for the product you can find n factor values. For product, whenever you calculate n factor value, you treat product as reactant and reactant as product. See the backward direction. Chlorine is plus 5. It is 0. It is 0. तो means यहाँ पे एक मोल में एक एटम है, तो will gain in the backward direction. Chlorine will gain how many electron? Plus 5 to 0 per atom. एक ही एटम है तो will gain 5 electrons. यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, तो इसका फैक्टर कितना आएगा 1. कि इसका स्टेट -1 है, यहाँ पे 0 है, तो -1 to 0, 1 एटम ऑफ क्लोरीन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया इसका फैक्टर 1, हो गया इसका फैक्टर का वैल्यू 1. अब हमारा पॉइंट क्या था? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड n फैक्टर इज इनवर्स. 1 ना लिखो चलेगा. रेस्ट ब्रेक ऑब्जर्वेशन. कितना क्लोरीन है? 6 क्लोरीन मींस 3 Cl2. ये आपको बैलेंस हो गया. चार्ज को बैलेंस करेंगे उसके बाद -1 and -5, -6 over chance. Then to balance hydrogen 3H2O. It become balanced redox reaction. It become balanced redox reaction. So it is one more application of n factor values, especially in objective questions. जहां पे खाली आपको निकालना होता है आंसर. इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकालना पड़ता है आपको? खाली आपको आंसर चाहिए होता है. तो आपका एक अप्रोच है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड n फैक्टर विल बी इनवर्स. आप इस पॉइंट को यूज कर लीजिए. तो हो गया बैलेंस. अब आपको निकालना था इसका n फैक्टर वैल्यू. आपको निकालना है इसके लिए n फैक्टर वैल्यू. फॉर दैट यू सी द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इफ यू टेक इन द नेट रिएक्शन, in the net reaction out of 6 chlorine atom, 5 chlorine atom are reduced to -1 oxidation number. Out of 6 chlorine, 5 atom chlorine are reduced to -1 oxidation number and 1 chlorine oxidized to +5 oxidation number. 1 chlorine is oxidized to +5 oxidation number. समझ में आया नहीं आया? फिर देख लीजिए, आपके 6 एटम हैं, 5 का रिडक्शन हो रहा है
0 से -1 तो विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा 0 से +5 में, लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। So we can take in this case there is net change of how many electrons? 5 electrons. In the net reaction they change 5 electrons. We can take for 3 moles of Cl2. इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज और कंटेन लॉस ऑफ एनीथिंग बेटर चेंज कितना रहा है? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस रिएक्शन है, 3 मोल Cl2 का है, एटम वाइज 5 एटम का रिडक्शन, 1 का ऑक्सीडेशन, तो कितना का चेंज हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। देन फॉर 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आएगा इसमें? 5/3। दैट इज व्हाट वी कैन कॉल द n फैक्टर। व्हाट इज n फैक्टर बाय डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड। आपका नेट रिएक्शन में 3 मोल्स क्लोरीन का दिया हुआ है, नेट रिएक्शन में 3 मोल्स क्लोरीन के दिए हुए हैं, चेंज कितना इलेक्ट्रॉन का इसमें हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 1 मोल में कितना चेंज होगा? 5/3। दैट इज द n फैक्टर वैल्यू। ये आपका सेकंड अप्रोच है, शॉर्टकट अप्रोच है, आप कैसे कर सकते हैं। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। चलिए लेट अस टेक सम मोर प्रैक्टिस टू मेक यू दिस क्लियर एग्जांपल। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसको, ठीक है।